Hello everyone, welcome back to the channel. In my previous video, as I discussed with you all about master numbers and destiny number, personality number and all. So let's take few examples and we'll move forward. Okay. So just a second. So let's before master numbers, there might be confusion. I got some of you personally texting me about uh, difficulties in master numbers. Before that, let's conclude with personality and destiny number. So let's take this date of birth: 15/08/1995. Okay, so 1 5 is equal to 6. Okay, this is P. Personality I'll be representing in all my videos with P, and destiny I'll be rewriting as D. So you all need to like cross verify and all the things. So D here will be 1 plus 5 plus 8 plus 1 plus 9 plus 9 plus 5. So that will be your equal to 2. Okay. Let us take one more example. Because the more examples we practice, the more clarity you will get. Right. Let's take 7042001. Okay. Here 7 will be P is equal to 7, D will be equal to 7 plus 4, 11, 11 plus 2, 13, 13 plus 1, 14. Right? 14 will be equal to 1 plus 4, 5. Okay, let's take one more number so that more confusion goes. 31, 1, 2000. 3 plus 1 will be 4, P. And D will be equals to 3 plus 1 plus 1 plus 2. So 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, 5 plus 2, 7. So this was something easy ones. Okay, now let me go to master numbers. There are lots of doubt in master number, right? So let me take you all to the master numbers. So few examples of master number will be 1402 1993. Okay. So P is very easy. You don't need to think about P in master numbers. P will be 5. In master numbers, you have to refer to destiny number. So D will be equals to 1 plus 4 plus 2 plus 1 plus 9 plus 3. Okay. So this whole total will give you 29, which will be equals to 2 plus 9, that is 11. So 11 is 2 at last, but 11 will be a master number. Okay. Let me take one more example for you all so that it will be more easy. So I'll be taking 29, 9, 1985. 2 plus 1 is 11. But since it is 11, it will be 2 again, right? So here 2 will be personality number. This won't be a destiny number, sorry, master number. Because we are only taking on the date which you are born, not the destiny. Now we'll see. Okay. See, you have to make calculation easy. 2 plus 9 plus 9, 20. Right? 20, 30. 30, right? 38. 38 plus 5 is how much? 38 plus 5 is 43. So, is it like a
Your master number, no. At last you will be getting 77. Let's take one more example here only. Same, just time changing the year. So 2 plus 9 plus 9 plus 1 plus 9 plus 7 plus 7. You have to make 20, 30, 37, 44. Here, 44 will be your master number. Don't take this as your master number. You need to calculate the whole. You need to take the destiny number, okay? So let's move again forward to our next topic. That is like meaning of destiny number. Like destiny number, the whole when you add the date of birth, it will should be equal to 1. Okay. So those who are born on destiny number 1, they have leadership qualities, higher designation, and then cannot work under anyone. Then people born on destiny number 2, when you add the whole date of birth, that should be equal to 2. So they will be spiritual, they will be creative, they will be designers. Okay. When you have the whole DOB, that should be equal to 3. They will have good communication skills. They will be equal to like higher education. People born on 4, the whole, not born on 4, sorry, the whole date of birth should be equal to 4. Responsible, hardworking, successful. Next, 5. D equals to 5. Keen learner, curiosity, they love changes. 6. Luxury, materialistic, very ambitious. D equals to 7, 8, 9, only 3 left. Long term studies, learn through research. Oh, sorry, earn through research. Learn also and earn also, both. D equals to 8. Successful only after hard work because it is sunny. सनी से तो हार्ड वर्क करने के बाद ही आप लोग को सब चीज मिलेगा ना. एंड देन सेल्फ मेड. D equals to 9, which will be equal to your goal oriented. So these are the few things you need to keep. Those who want to learn whole course properly can DM me, can comment in the YouTube section, and then you all can come. Okay. So now we'll be moving forward to the days numbers. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Okay. So Monday is related to 1, Tuesday to sorry, Sunday is equal to 1, Monday 2, Tuesday 9, Wednesday 5, Thursday 3, Friday 6.
and then Saturday 8. Now I'll just take a quick revision of the thing because I have already told you in the starting, after planets, you all won't be able to like, no, if you all don't do the planets properly, that will really cause a big problem because plan everything depends on planets because you need to relate numbers with planets, है ना? तो अब आप सब लोगों से मैं कुछ planets का नाम बोलूंगा, आपको बताना है वो कौन सा नंबर से रिलेटेड है। जुपिटर इज थर्सडे। मैं तो सीरियली भी लिख सकता हूँ, राइट? सीरियली लिखने से क्या होगा, आप लोगों को डाउट होगा, डाउट नहीं क्लियरिटी होगा, लेकिन बाद में जाके डाउट होगा कौन सा नंबर कौन सा प्लैनेट से रिलेटेड। अगर अभी ऐसे जंपल वे में करूँ ना तो आप लोगों को क्लैरिटी होगा। मरकुरी इट विल बी 5, देन मार्स मंगल, विनस, सैटर्न, मून एंड सन। यहाँ पे दो तो रह गया है प्लैनेट्स, आप सोचेंगे वो कौन सा दिन से, दैट इज राहु और केतु। राहु एंड केतु। राहु is related to Wednesday and Saturday, and Ketu is related with Sunday and Saturday। ठीक है। डेज हमारा रेमेडी का करवाने में काम आता है ज्यादातर, तो वो चीज है। अब हम करेंगे डेज की मीनिंग। कौन सा डे क्या मीनिंग बोलता है ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी, ये सब हमने कर लिया ऑलरेडी। हाँ ये तो संडे जो होता है वो लक्की भी लक्की होते हैं, चांस टू शाइन होते हैं, विनर्स होते हैं, डोमिनेटिंग होता है। संडे में जो बॉन्ड होता है रिलेशनशिप्स में डोमिनेटिंग हो सकता है। मंडे वाले इमेजिनेटिव होता है, उन लोगों को पहले से प्लान करना अच्छा नहीं लगता है। फ्लेक्सिबल और कोई भी चीज को इम्प्रूव करने में फ्लेक्सिबल है वो। ट्यूसडे वाले के अंदर गुड विल पावर है, एग्रेसिव है, एम्बिशियस है। वेडनेसडे वाले टैलेंटेड होता है, परफेक्शनिस्ट होता है, किसी दूसरे के ऊपर रिलाई नहीं करते। थर्सडे वाले ओपन माइंडेड होते हैं, लक्की होता है, अनफॉरगिवेबल अनफॉरगिविंग भी होता है। फ्राइडे वाले सेल्फ कॉन्फिडेंट गॉर्जियस पर्सनैलिटी के होते हैं, फेस चैलेंजेस। सैटरडे वाले ऑप्टिमिस्टिक लगते हैं, गोल अचीवर्स होता है, हार्ड वर्किंग होता है, और उन लोग वैल्यू का एक्साइटमेंट करते हैं। अभी सबसे बड़ा टॉपिक हम करने जा रहे हैं लोशो ग्रिड। ये न्यूमरोलॉजी का मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है लोशो ग्रिड से रिलेटेड। तो आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि ये चीज आप सभी ध्यान से देखें, बिकॉज ये सब सब चीज बहुत मैटर करता है। लोशो ग्रीड, ठीक है। लोशो ग्रीड कैसे आया कैसे नहीं ये सब जानना भी दरकारी है हिस्ट्री के बारे में। तो लोशो ग्रीड क्या होता है, एक ग्रेट एम्परर चाइना में एक टॉर्टोइस का शेल ढूंढा था जो फ्लड हुआ था रिवर लो में, ठीक है। ये एस्पिशियस हुआ था बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चाइनीज गॉड जो था ना, वो जो रिसाइड करता था टॉर्टोइस, ठीक है, जो रिसाइडेबल होता था टॉर्टोइस, रिसाइड इन द टॉर्टोइस इन इटसेल्फ। जो टर्टल था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, ये एक स्पेशल मार्किंग था टॉर्टोइस का सेल में। क्या मार्किंग था, 3x3। जो हम लोग बचपन में टिक टैक टो खेलते थे ना, वो 3x3 का स्क्वायर होता था। एवरी हॉरिजेंटल लाइन और एवरी वर्टिकल लाइन जो भी होगा या डायगोनल जो भी होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 15, ठीक है। और जो था बीच में नंबर 5 था, ठीक है। तब 5 था तो बीच में ये बहुत सारा चीज अब हमें
देखना होगा, बिकॉज अगर बीच में 5 है तो हमें ऐसा नंबर देखना होगा जो इक्वल्स टू 15 होना चाहिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है, मैं क्यों डिलीट कर रहा हूँ। मैं नया से भी सब चीज बना के आप सभी को दे सकता था, ठीक है। बट क्या होता है, कुछ चीजेस लिखा हुआ रहने से ना कोई चीज भी मिस आउट नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं यूट्यूब का वीडियो बना रहा हूँ तो ये सब चीज मतलब जो क्लास में नहीं कराता हूँ वो नहीं कराऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब चीज कराऊंगा, ठीक है। जो नंबर 4 है वो यूरेनस और राहु से रिलेटेड होता है। 9 जो होता है वो मार्स और मंगल से रिलेटेड होता है। दो मून और चंद्र, सेम जो प्लैनेट्स जो हम लोग सीखे थे वो वाला ही है इधर सभी, ठीक है। ये सब प्लैनेट्स है। तो ये इन द वे बनाया गया, अगर 15 होने से 492 357 816 तब 15 बनेगा, ये पूरा एडअप करने से, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे चीजेस है कि मतलब ये लोशो ग्रिड को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हमें कुछ एग्जाम्पल्स की लेके ही आपको समझाना पड़ेगा। इसके लिए जितने आप एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, जितने ये वीडियोस को देख कर आप और प्रैक्टिसेस करते जाएंगे, उतना ही आपके लिए बहुत इजी भी होते जाएगा। बिकॉज अगर आप नहीं लेंगे ना कोई भी एग्जाम्पल्स तो प्रॉब्लम होगा। हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 15/08/1995, ठीक है। तो 1 + 5 P इज इक्वल टू 6। और D क्या होगा, ये पूरा को ऐड करने से आपका D मिलेगा 2। अब हम लोशो ग्रिड बनाते हैं। सीन्स आप लोग नया है तो साइड में आप बना लीजिए, क्योंकि इजी होगा। 492 357 816। तो 1 + 5 तो 1 पहले नीचे कहाँ पे है, ये 2 है, ठीक है। हियर 5 कहाँ पे, बीच में है। 8 कहाँ पे, यहाँ पे है। अगेन 1, 9, 99, अगेन 5। अब ये ध्यान रखिएगा, जहां पे भी मैं P लिखूंगा नंबर पे सर्कल करूंगा, D में मैं स्क्वायर बनाऊंगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 6, ओके, एंड D इज इक्वल टू 2। यहाँ एक डायगोनल कंप्लीट हुआ, दो डायगोनल कंप्लीट है। ये दो डायगोनल्स का मीनिंग हम सीखेंगे। लेट्स टेक मोर एग्जांपल। मैं एक खाली वीडियो बनाऊंगा लोशो ग्रिड का, लाइक कैलकुलेशंस एंड ऑल, मास्टर नंबर्स एंड ऑल। इधर मैं 3 4 एग्जांपल्स आपको दे देता हूँ सो दैट आप लोग के लिए इजी हो। बिकॉज खाली नेक्स्ट वीडियो होने से तो नहीं होगा, आप लोग को तो जानना भी पड़ेगा ना कैसे क्या प्लेसमेंट होगा। 2 + 4 P इज इक्वल टू 6, D विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, D विल बी इक्वल्स टू 7। अगेन यू ऑल राइट, 492 357 816 टू टू। ना हर नंबर जिस दिन आप मतलब जो भी नंबर है डेट ऑफ बर्थ में, एक एक करके प्लेस करते जाइए। कितना ग्रीड, 1 2 3। काश 5 होता तो ऑलमोस्ट सब ग्रीड हो जाता, ज्यादातर हो जाता। तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिला, 3 ग्रिड, 3 डायगोनल्स का मीनिंग हमको सीखना पड़ेगा।
देखिए, मेन तो देखिए, ये जो प्रैक्टिकल्स मैं करा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट, बिकॉज लिखा हुआ तो मैं स्लाइड में भी दिखा के आप सभी को बोल सकता हूँ। D4 D4 5 6 7 7। मैं आप सभी के लिए मैं बार बार ये लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को बार बार पलटना ना पड़े। यहाँ पे कोई ग्रिड कंप्लीट नहीं हुआ, जीरो डायगोनल्स या जीरो लाइंस। और एक लेता है। ये सब तो सब प्रैक्टिस के ऊपर बात है, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग का वो होते जाएगा। 1 and 2। 1 जीरोस का तो कोई प्लेसमेंट ही नहीं होगा, अगेन 1। डबल 9। 4 9 2 तो हो ही गया। इधर तो ओनली वन डायगोनल इज कॉम्प्लीटेड। ये मिसिंग नंबर्स जो जो नहीं है, इसका भी बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में भी कि क्या डिनोट करता है। अगर 5 नहीं है तो उसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं कि डायगोनल्स कंप्लीट होने का क्या मीनिंग बनता है। मैं आप सभी से ये तो यहाँ लिखा हुआ, मैं आप सभी को थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहूंगा। 4 9 2 ये कहाँ पे, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है अगर हम शरीर को बनाए। आई नो कि ये वाला ऐसे ही बना है, तो सबसे ऊपर क्या है हम लोग का माथा, दैट इज हेड प्लेन। 4 9 2 को हम हेड प्लेन बोलते हैं। 3 5 7 क्या है बीच में, मिडिल बॉडी। एंड 8 1 6 इज लोअर। ये बॉडी के साथ रिलेट करने से इजीली हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया जब आप लोग ये लाइन ऐसे ऐसे करना चाहेंगे। अब वर्टिकली होने से कैसा होगा। 4 3 8। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, कोई भी काम करने के लिए थॉट चाहिए। थॉट होने से नहीं होगा, विल पावर भी चाहिए करने के लिए, कोई भी चीज के लिए फिर क्या चाहिए, एक्शन चाहिए, ठीक है। तो 4 3 8 विल बी योर थॉट। 9 5 1 विल बी योर विल पावर, ठीक है। और अगर आप करेंगे 3 7 6 विल बी योर एक्शन, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हार्श एंड वो मतलब रूल्स ऐसा कुछ नहीं है, बट जितने आप इजी में लिखेंगे उतना आपके लिए इजी होगा। ऐसे भी लिख रहे तो हमें तो वही मिल रहा है ना, एट लास्ट 15 ही आ रहा है ना। तो बट हम ऐसे लिख रहे हैं बोल के हम ऐसे लिखेंगे, यूजुअली हर जगह लोशोग्रिड ऐसे ही लिखा जाया गया है। आप डायगनल्स करते हैं बहुत, ये लाइंस यू माइट बी थिंकिंग ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा, बट यही है। 4 5 7 is a golden arrow and 2 5 8 is your silver arrow। अभी इन सब का मीनिंग्स हम डिकोड करते हैं। 4 9 2 वाले इंटेलेक्चुअल इमेजिनेटिव शार्प मेमो प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले होते हैं। 3 5 7 वाले इमोशनल रोमांटिक विजनरी ड्रीमर्स होते हैं। 8 1 6 वाले लॉजिकल ऑब्जर्वेंट स्टेबिलिटी डाउन टू अर्थ होते हैं। 4 3 8 वाले न्यू आइडियाज आइडियाज कैन चेंज योर लाइफ इनोवेशन एग्जीक्यूशन ऑर्गेनाइज वाले लोग होते हैं। 9 5 वाले स्ट्रॉन्ग विल पावर डिटर्मिन इंटेलेक्चुअल होते हैं। 2 7 6 वाले पॉजिटिव एटीट्यूड होते हैं, टास्क ओरिएंटेड होते हैं, फास्ट डिसीजंस होते हैं।
456 वाले गुड कम्युनिकेशन, कन्विंसिंग पावर, नेम फेम सक्सेस। 258 वाले प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट और पेशेंट वाले लोग होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि अगर यहाँ पे वन है और अगर वन नहीं है तो क्या मीनिंग होगा। मैं फिर भी आप सभी को बोलना चाहता हूं, अगर आप लोगों को कोई भी एंजल रीडिंग, टैरोट, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, मेडिटेशन, कुछ भी चीज का दरकारी हो तो आप मुझे 8822596318 पे कांटेक्ट मी। ठीक है, फार बेटर होता है। तो हम यही वीडियो को एंड करना चाहेंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जितना कांटेक्ट करेंगे उतना ही आप लोग का इजी होगा वो जानने में। ठीक है, थैंक यू ऑल।